جاوید احمد گامدی، طارق جمیل، ڈاکٹر ذاکر نائک، انجین محمد مرزا، طارق مسعود، طارق جمیل کے ساتھ تبلیغ جماعت وغیرہ سارے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر الیاس قادری جو اس کی ساری جو جماعت وغیرہ جو ہے، جو اور سعد رضوی، خادم رضوی جو اس کا باپ جو تھا، وہ پھر فضل الرحمان جو دیوبند والے سارے آ جاتے ہیں۔ پھر جماعت اسلامی، پھر کیسر راجہ، ساحل ادیم جو ہے، پھر اس کے بعد جو قاسم علی شاہ جو ہیں، اس سے پہلے تھوڑا پہلے چلے جائیں مودودی، اس سے پہلے چلے جائیں ہسٹری میں چلے جائیں، تو اس طرح کے معاملات آپ کو اور ملتے رہیں گے۔ ان سب میں جو باقی چیزیں تو کئی چیزیں کامن نہیں ہیں، لیکن جو ایک چیز سب سے زیادہ کامن ہے ان میں سے کوئی بھی سائنٹسٹ نہیں ہے، فلاسفر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، ریسرچر نہیں ہے، کوئی ان معاملات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سو کال آپ پاکستان کے موٹیویشنل اور آپ مذہبی قسم کے اسپیکر ہیں جو لوگوں کو آگے لگایا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کس مقام پہ کھڑی ہے، کس قسم کے لوگ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اوور آل جو پوری نیشن کا جو فیبرک ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سامنے آ چکا ہوا ہے۔ یعنی اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح ہے کہ انگلینڈ، مثال میں کئی دے سکتا ہوں لیکن تھوڑی سی ریلیونٹ سی بات اس طرح ہے کہ انگلینڈ کے اندر ابھی جو نئے فگرز آئے ہیں اس کے مطابق جو سب سے زیادہ جو سالم اپلائی کیے ہیں وہ پاکستانیوں نے اپلائی کیے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ جو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے جو اپنے ہمیشہ کے لیے جنہوں نے پارلیمنٹ سے اس وقت استثنا بھی لے لیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ دو ریاستیں بنی ہیں اسلام کے نام کے اوپر، ایک سعودی عرب کی جو ریاست طیبہ جو ہے، اور دوسری پاکستان کی، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ اللہ کی فوج ہے، کامیابی ہے، پاکستان کی سرزمین پاک سرزمین ہے۔ افسوس کی بات ہے اسی پاک سرزمین کو چھوڑ کے سارے جا رہے ہوتے ہیں، اسی پاک سرزمین کے معاملات جو ہمارے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں باقی سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مذہبی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا جو طاقتور حضرات سے لے کے نیچے تک ہر بندہ مذہب کا استعمال کر رہا ہے، اور یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بات کی، یہ موٹیویشن اسپیکر کی یہ جو لسٹ ہے، یہ اینڈ لیس لسٹ ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بندہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کا کوئی بیسک نالج سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اس معاملات میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک منٹ ریکوائر ہے، اس کے لیے ٹائم ریکوائر ہے، وہ آپ میں آپ آگے کوئی بھی جھوٹے قصے کہانی نہیں سنا سکتے۔ لیکن اس پہ بعد میں پتہ نہیں کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی، غربت کے اپنے مسائل ہیں، 2 کروڑ بچے جو ہیں پاکستان کے اسکول سے باہر ہیں، صحت کے معاملات ہیں، پھر اور بھی کئی معاملات ہیں نا۔ تو یہ سب سے زیادہ آسان روٹ ہے دنیا میں۔ آپ کہیں دیکھیں دنیا کے ہر ملک کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی یورپین کنٹری دے سکتے ہیں، امریکہ دے سکتے ہیں، اور بھی کئی ممالک ہیں انڈیا میں، لیکن وہاں پہ معاملہ یہ ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں سائنٹسٹ بھی ہیں، ریسرچ بھی ہو رہی ہے، ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو ہمالیہ سے مضبوط جو دوستی والا ملک ہے چائنا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، تو انہوں نے دیکھ لیں ریسرچ کے اوپر، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ایک طوفان برپا کر دی ہے۔ جس طرح امریکہ کی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ آیا جو ہے امریکہ کی طرف سے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے اپنا لے کے آئے ہیں، اس دیکھا جائے تو وہ یہ ایک لانگ ایک لسٹ ہے جس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن مسئلہ اسے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں، کیونکہ یہ آسان معاملہ نا، آپ مذہبی معاملات کے اوپر آ کے کوئی بھی جھوٹی کسی کہانی لوگوں کو سنا سکتے ہیں، آ کے کوئی معاملہ بھی کر سکتے ہیں، مذہب کا نام ہے، جس طرح کہ ہماری قوم ہے، وہ کوئی بھی آپ کے سوال نہیں اٹھائے گا، آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات بھی کرتے جائیں، آگے کوئی کسی بھی ضرورت بھی نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ آگے جو قوم ہے وہ ایک نشئی سی قوم ہے، اس کو جو مرضی کرتے رہیں، تو یہ ایک آسان طریقہ، پیسے بھی ٹھیک ٹھاک بنتے ہیں، فالوور بھی ٹھیک بنتے ہیں، لائکس بھی ملتے ہیں آپ کو، اس پہ آپ کی صحیح کمائی بھی ہو جاتی ہے۔ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو سائنس میں، فلاسفی میں اس میں باتیں کرنے کی؟ نہ آپ کو اچھے ویوز آنے ہیں، نہ آپ کو کوئی کمائی بھی ٹھیک نہیں ہونی، تو کیا میں مطلب برا ہاتھ بھونکے دے آ رہے؟ تو یہ معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے ساری قوم آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اس طرح کی آ چکی ہوئی ہے۔ جس طرح دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کے اندر صرف ایک ہی چیز ملتی ہے، ان سب کے اندر، کہ یہ جو جتنے موٹیویشن اسپیکر جتنے بھی ہیں، کہ یہ سارے جو ہیں وہ یہ مذہب کے معاملات کو سامنے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی سائنٹسٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں یہ اور کوئی انجینئر نہیں کہ فلاسفر نہیں ہے، یہ معاملات جس طرح، لیکن اس کے ہر مسئلے مسائل جو ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب کے معاملات بھی ہر بندے کے ان کے الگ الگ ہیں۔ جس طرح اکثر لوگ کہ آپ بھی جانتے ہو گے، میں بھی جانتا ہوں، میں وہ گامدی کے بارے میں کہہ رہتے ہیں بڑا یہ سافٹ اسپوکن ہے، بڑی بات کرتے ہیں، بڑی نرم طریقے سے بات کرتے ہیں، اور اسلام کا صحیح ورژن پیش کرتے ہیں، ہم تو یہ گامدی صاحب کو ہی فالو کرتے ہیں، اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، حالانکہ میں گامدی سے خود بھی مل چکا ہوں۔ لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر ان کا اسلام ٹھیک ہے تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ پاکستان سے باہر کیوں اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان جانے کا نام نہیں لیتے؟ نام اس لیے لیتے کہ جب اپنی جان کا خطرہ ہے نا ان کو، کیونکہ ان کئی معاملات ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہر بندے نے اپنا اپنا اسلام بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کے جو لوگ جو ہیں، جو میجورٹی کا دیکھا جائے تو وہ ان کا اسلام پسند نہیں ہے۔ کیونکہ آپ اس کی کئی مثالیں، جیسے طارق جمیل، پاکستان کو چاہیے طارق جمیل جیسے یہ رنگ باز قسم کے جو لوگ ہیں جو اب جھوٹے قصے کریں اسلامی حوروں کے بارے میں، حضرت جاوید احمد گامدی جو اس کو حوروں کے بارے کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے، وہ کہتا ہے حوروں کا چکر ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اس کی جا کے سن سکتے ہیں۔ وہ تو معراج کے واقعے کو بھی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو غار ہرا کے واقعے کے بارے میں اس کے معاملات ہیں، یہ میں کو اسلامی اسکالر نہیں، میں آپ کو ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے معاملات ہیں، وہ پاکستان نہیں جا سکتا، حالانکہ پاکستان میں بھی اس کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں،
और दूसरी आप तारक जमील को चेक कर सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को चेक कर लें, उसके भी लाखों मानने वाले हैं देखा जाए तो। बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, हर वक्त कितनी बार कह चुका है कि बाहर के मुल्कों की नेशनैलिटी लेना, ये पासपोर्ट लेना हराम है। फिर वो ये भी वो ये भी कह चुका कि औरत की हुक्मरानी हराम है, और जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं वो जन्नत में पहले चले जाएंगे। ये इतनी बड़ी वो आपको पेशेंट को ये दे चुका है, आपके बारे में बात कर चुका है। उनको मानने वाले लोग, मैं कही था उनसे बात हुई, मैं कहा जी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये कहते हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, आप तो बड़े सुनते हैं, आप तो रोज़ ही लाखों लोग जो ना पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हुए हैं अमेरिका वगैरह में, कहीं वो जानता वो आके अपनी तरफ से ना इनकी तकरीरें टीवी पे लगा के बैठ के सुन रहे होते हैं, समझते हैं हम बहुत ही बड़ा इस्लामी, वो अपने आप को अंदर का धोखा है, वो जहनी ये ना जहनी तौर पे वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हम इनकी तकरीरें सुन रहे हैं, बड़ा गार्डन मजहबी माहौल बनाया हुआ इनको सुन रहे हैं। मैं फिर कई तो उनका मैं आप इनको सुन तो रहे हो तो ये कहते हैं, उन्हें सारी गल्लां ठीक तो नहीं ना होंदियां, मतलब बाकी गल्लां तो चंगियां ही हैं ना। मैं कहूँ बाकी चंगियां होने के लिए आपका मजहबी होना ज़रूरी नहीं है कि क्या अगर जापान में जो लोग अच्छे जो चीज़ें लोग अच्छी करते हैं, हालांकि जापान की हर जगह हमारा हर बंदा मिसाल दे रहा होता है कितनी कितनी वो ईमानदार कौम है। बाकी जिन मुल्कों में क्या बैठे हुए हैं उनका तो डॉक्टर जाकिर नाइक लीडर नहीं है या उनका मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, फिर वहाँ भी बैठे हुए हैं आप जाके, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं करना चाहते, इस सच को प्रोसेस नहीं करना चाहते हमारी कौम को। बचपन से ना हमारे जितने भी ये लोग इस वक्त भी हैं, इनसे पहले उनके माँ बाप, उनसे पहले माँ बाप, उनका बचपन से ही ये झूठे किस्से कहानियाँ उनके खून में रच बस गई हुई हैं ये चीज़ें, वो इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लें जाकर। तो इसलिए मेरी तो कोशिश ये नहीं होती है क्योंकि मनाना किसी का नहीं होता, उनके सामने बात करनी होती है। इस तरह की बाकी बातें भी आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने गांधी की बात की है, तारक जमील की बात की है, तो वो खुद किसी भी वो लियास कादी चेक कर सकते हैं। वो एक नए कॉमेडी चैनल है, वो भी अपनी तरह बातें कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें आपको सुना रहे होते हैं जाकर, ये मतलब वो ऐसे ऐसे सवाल कर रहे होते हैं कि अगर वो इंग्लिश में बात हो रही हो तो एक दुनिया के लिए एक कॉमेडी चैनल बन जाए। बल्कि हमारे जो अब देख रहे हैं रोज़ कोई ना कोई मामला पेश आ रहे होते हैं, मज़हब की जितनी बदनामी हो रही है इस वक्त, मुल्क की जितनी बदनामी हो रही है, लेकिन क्या करें कि आगे से लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं अक्सर कहता हूँ ये जितने भी सारे लोग हैं ना, ये पुड़ियाँ देने वाले हैं, नीचे नशाई हैं, हमारी कौम नशाई है, ये पुड़ियाँ देने वाले हैं, और इनको जो पुड़ियाँ देने वालों को जो पुड़ियाँ दे रहे हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हजरात है। तो ये एक नेक्सस है जो ऐसे चल रहा है, जिससे कौम आगे चल रही है। वो आगे आप साथ भी चेक कर सकते हैं उसका, वो देख लें वो कहाँ से उठ के आ गया, ना कोई बेसिक नॉलेज की है, बाप ने आकर जो उसको जो खादम रिजवी था वो आगे झूठे गंदी गालियाँ निकाल रहा होता था आके स्टेज पे बैठ के आके। अब देख लें हमारी कौम उसको फॉलो कर रही है। मैं ये बताने का मेरा मकसद आपको ये वीडियो को ये बताने का कि आप देख सकते हैं कि जिस कौम को जो कौम ऐसे लोगों को फॉलो करती है उसके लिए आगे सड़कों पर आती हो, वहाँ साइंस टेक्नोलॉजी का क्या मामला, वो कौम कैसे आगे बढ़ सकती है। इस तरह से कई हमारा तो कोई मामला तो नहीं है ना, कई कौमें आई हैं, फ़ारोस से लेके फ़िरौन से लेके उसके बाद फिर रोमन सल्तनत आई है, फिर उस्मानी सल्तनत कई आई हैं, उनका आज नामो निशान भी नहीं है। वो कई कौमें आई हैं, उनका मुल्क ऐसे थे जिनका आप नाम भी नहीं सुना होगा, तो हम भी उन्हीं में से हैं भाईजान। हम ये समझ रहे हैं कि हमें शक्ल रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त था, हालांकि 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। फिर फजल रहमान का चेक कर सकते हैं, वो कहते हैं मस्जिद में वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, हालांकि इनमें से कोई बंदा भी मस्जिद में वाक़यात पेश आते हैं जाके गरीब छोटे बच्चों के साथ, किसी ने आके कोई मामला किए हैं, कोई सड़कों पे आया कि मस्जिदों के बारे में कोई इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि हम आइंदा भाई ऐसा नहीं होने देंगे, किसी ने कोई ऐसी कमेटी बनाई है, इस तरह हुकूमत को छोड़ ही देना, वो तो है ही ऐसी है, इन्होंने मिलकर कोई ऐसा काम किया आके कभी, वो जमात इस्लामी वगैरह चेक कर लो जाके, बस सिर्फ क्या कि फिर बड़े बड़े बयान देने के चक्कर के अंदर। अभी रिसेंटली कहते हैं जेफरी एप्स्टीन का बड़ा मशहूर केस जो पेश आया जिसमें छोटी बच्ची के साथ मामला जो आया थे, उसके चक्कर में जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है उनका जो प्रिंस एंड्रयू था उसका नाम आया बहुत ज़्यादा, उन्होंने उसके जो प्रिंस का जो टाइटल है उससे ले लिया, यानी मुकम्मल तौर पे अब वो शहज़ादा नहीं रहा, उसका मुकम्मल तौर उसको आम शाही बना दिया सज़ा के तौर पे। अब उसका नाम जो है एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर हो गया हुआ है। यानी कितना बड़ा उसको इबरत का निशान बना दिया, इतना बड़ा शहज़ादा था। ऐसे मामला तो हमारे मुल्कों में कहते हैं तो कोई गल नहीं, आम ही गल लगी। अब ये नहीं हम सारे मामला ठीक ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया। और हमारे लोग एक मौलवी को ऐसे मामलत करने पे मस्जिद नहीं हटा सकते, तो हमने बड़ी बड़ी बातें मार कर पहुंची हुई हैं। उस तरह बाकी भी आप देख सकते हैं, जैसे कैसर राजा जो है, फिर साहल नदीम है, फिर कासम अली शाह, ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन और आगे से लंबी लिस्ट है। अब ये और में सारे वो भी हैं जो पहले कहते थे स्पीकर पे बात करना ठीक नहीं है। ये बातें मेरी बोर होती जाएंगी, मैं आपको माजर चाहता हूँ, मैं बोर करना नहीं चाहता। ये सारी वही बातें हैं जो पहले मैं रिपीट कर रहा था, लेकिन मकसद मैं आपसे आज वीडियो का मकसद ये था बता सकूँ कि ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब इनमें से कोई भी, मैं पहले कहा, कोई भी साइंस के बारे में बात नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा, और भी चीज़ें मेरे अंदर कॉमन है। मैं साथ साथ में एक बात ऐड कर दूँ कि ये सारे अपने बच्चों को आगे ले आए हुए हैं। यानी जिस तरह ये बिजनेस एम्पायर नहीं होती, बिजनेस होता है, जिस तरह बिजनेस होता है ना, बिजनेस होता है कि आप अपना कारोबार, हाँ मेरा पुत्र बैठेगा थे आके ना, मेरा जिस तरह सियासतदान में, हमारा सियासत का भी वही हाल है। अब तो फौज के अंदर ऐसे मामले थे कि फौज में ये चीज़ नहीं है, नहीं तो फौज का जनरल वो भी कहता है मेरा हूँ बेटा ही बनेगा आके थे चीफ ऑफ द आर्मी मिनिस्टर मेरे जान दे बाद, अभी तक वो चीज़ नहीं आ सकी। तो इनमें भी वही चीज़ है। आप डॉक्टर जाकिर नाइक को चेक कर लें, आप गांधी को चेक कर लें, उसका बेटा है,
फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को चेक कर लें, उसका बेटा ऑलरेडी है। फिर इलियास कादरी को चेक कर लें, उसका बेटा। फिर तारक जमील चेक कर लें, उसका बेटा है। फिर आगे आप देखें जाओ, साद रिजवी जो है वो भी ऐसे चक्कर में आया हुआ है। ये सारी लिस्ट है। ये देखा जाए तो मजहब कोई कारोबार है? आप मजहबी मालूमात दे रहे हैं, जो तालीमात दे रहे हैं, आप कोई बंदा भी आगे आए अपने टैलेंट के तौर पे जो मजहब के मामलात के अंदर अच्छी तरह जानता हो, क्योंकि ये कोई ऐसे कारोबार तो नहीं कि आपने अपने बेटे को बैठाना है। लेकिन क्या करें, वो इनको उनको पता है कि कोई उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो उनके ऊपर जो आशीर्वाद है उनके ऊपर है, वो लोगों उनका मकसद यही कि पूरी कौम को इसके अंदर मामला कैसा ऐसा उलझा दो, ऐसा मामला कर दो कि उनकी सोच से ऊपर जाए ना, ज़्यादा जहाँ भी थोड़ा बड़ा बात करे उसको वहीं पकड़ लो जाके, उसके ऊपर वो तौहीन रसालत का जिसम जो अंजीर मोहम्मद मिर्ज़ा जो है, जो कहता था ये बड़े मेरे लाखों जानने वाले हैं, मेरे पे कोई हमला करेंगे तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, वो अंदर होया हुआ ना। देखा जाए गांधी पाकिस्तान नहीं आ सकता, जो अंदर बैठा हुआ था, जो बड़ी कहते थे बड़ा रिफ्रेशिंग बात है जी, बड़ी इस्लाम की बड़ी सही बातें करने वाला, वो तौहीन रसालत के चक्कर के अंदर होया हुआ। ज़्यादा कर सकते इस कौम का हाल है। और यहाँ पे देख लें कि कोई एक बंदा भी आके कोई साइंस के बारे में मोटिवेशन, जो आज का हमारी बात है, हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, तकरीबात में किन लोगों को बुलाया जा रहा है, तारक जमील जैसे कासर राजा जैसे लोगों को बुलाया जा रहा है, और ये लोग आके स्पीचें दे रहे हैं आके। हालांकि वहाँ पे ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो आके फिलॉसफी के बारे में बात करें, साइंस के बारे में बात करें, चैट जीपीटी जो है वो AI के बारे में बात करें, लोगों के अंदर ये चीज़ें लेके उनका टैलेंट बाहर लेके आएँ, ताकि पाकिस्तान का नाम दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से जाए, जो इल्म के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, कल्चर के अंदर, आर्ट के अंदर। इन चीज़ों से कौमों का नाम होता है। मज़हब अपनी जगह होता है। मज़हब क्या बाहर के मुल्कों में जहाँ हम जाते हैं डंकी लगा के, जो ताकतवर हज़रात जाते हैं, क्या वहाँ मज़हब नहीं है? क्या आपका मज़हब की आज़ादी वहाँ असल नहीं है? लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें भी हैं। जिस मैंने पहले इस मेरी वीडियो मौजूद है, मैं कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि हम आज तक कोई अपना हीरो पैदा नहीं कर सके। हमने झूठे अपने हीरो पैदा किए हुए थे, जिसके बारे में अक्सर हम बात कर रहे थे, शेर शाह सूरी वगैरह और महमूद गजनवी, उनके बारे में अक्सर आप लोग बातें कर रहे हैं ना, फिर बातें करते हैं। हमने अपने मिसाइलों के नाम उन पर रखे थे, अब उनके बारे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहता है जी वो लुटेरे थे, चोर थे। ये हमारा हाल है इस कौम का। और उसमें देखा, अगर उस वक्त चलो है ही था, अब हमने क्या चेंजिंग लेके आए हैं। आज हमारे हीरो कौन है? आपके सामने ही सब कुछ है। तो मेरा मकसद ये है कि कोई भी कौम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती होती, और जब तक उनके जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो उनके जो ताकतवर हजरात है, कौम की डायरेक्शन को ठीक नहीं करते। हमने सारी कौम को, ये मुर्गियाँ ये डब्बे में बंद नहीं होती हैं जाके, वो नशई होती हैं, वो फिर नशे का इंतजार कर रही हैं। वो जब वो होता है कि कोई ना कोई बंदा जो नवा नशई मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, वो जो पुड़ियाँ देने वाला उसको दे देता है पुड़िया आके, वो इस तरह में खुश हैं। उनको मेरे जैसे बंदे नहीं चाहिए, उनको जो उनकी इस ट्रस्ट में लगाया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे से बेहतरीन बंदे मौजूद हैं, उनको वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो कौम के ज़हन को ओपन करेंगे, बताएंगे कि हमने दुनिया में कैसे नाम पैदा करना है, अपनी कौम को कैसे नाम पैदा करना है, घर का, मुल्क का, मज़हब का, सबका नाम होगा। उनको नहीं, उनको ये करना है, नहीं काम करना। ऐसा ना कि होगा कि दिमाग खुलेगा आके साढ़े द्वारे ना हो जाएंगे किधर। तो यही चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। ये उसी तरह है जिस तरह एक पाकिस्तान में ड्रामा में नहीं दिखाते थे, वो जगीरदार है, वो अपने वहाँ पे स्कूल नहीं खुलने दे रहा, वो लोगों को वो सबको दबा के रखा हुआ। अगर कोई बंदा बाहर जाके तलीम हासिल कर भी लेता है, वापस आता है, तो वापस आके उसको भी वो जो थोड़ा बोलता है, अच्छा पढ़ाई तो करके तुम सीख के आए हैं साढ़े के बोल देगा। वो ड्रामा में देखते होंगे, वो बाद में उसको मरवा ही देता है। तो यही उसी चक्कर को आप इसको स्टेट लेवल पर चेक कर लें, तो ये पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान की जो ताकतवर आते हैं वो जगीरदार हैं, और आम लोग जो हैं, मेरे जैसे बंदे जो हैं, वो वही हैं जो सही बात करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बंद है। और जो इन जैसे बंदे जाके जितनी झूठे किस्से कहानी सुनाओगे, उसके बारे में कोई मसला आपको सवाल जवाब नहीं होगा। जैसे ही आप उनको सच बताओगे, सच इज़हार का पहला वैसे मसले में पैदा होंगे। एनी हाउ, मैं बात बहुत बोर होती जा रही है, मैं अगर बोर करना नहीं चाहता था, मेरा मकसद था आपके सामने बात लेके आने का। और एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका हुआ है। आप और नेशनल लेवल पे कुछ होने का कोई चांस नहीं लगे। मैं इस बारे में कह चुका हूँ कि जब भी कोई चेंजिंग आती है नेशनल लेवल से आती होती है, लेकिन उसका कोई चांस नहीं है। आप यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों के अंदर उनका दिमाग खोलें, उनको साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन में, रिसर्च में, AI में अगर लेके आएँ। चाइना को चेक कर लें, ना उनका मज़हब है, ना को अल्लाह को मानते हैं, ना रसूल को मानते हैं। देख दुनिया में उनको पावरफुल नेशन बनी है, बनी एक प्राइड बनी है, एक फ़ख्रिया कौम बनी है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपने उनका दिमाग खोलें ताकि अच्छी तरह जान सके, ताकि कल को उनका कोई नाम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी नाम होगा। ये मेरी आप दरख्वास्त है। हम लोगों को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, इस बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।